Hello everyone, I'm Justina Perez and I'll be discussing the news analysis of the day, that is the 4th July 2024. So let's begin with the today's news discussion. आज बहुत डिस्कस करेंगे और from the Hindu and the Indian Express. तो हमारा जो पहला आर्टिकल है it is with regard to India, जो इंडिया होस्ट करेगी the 46th UNESCO Heritage Panel Session. ठीक है, इंडिया will be the host of the 46th UNESCO Heritage Panel. And this is the first time where India has been a committee member of this particular association. अगर हम कहें about the World Heritage Committee के पहला time we are hosting this, so this is the first of for India. Let us now understand the basics information. हम अभी कुछ basics समझेंगे about this body and this is going to be very important for your exam. So let's start with understanding the full form of UNESCO. UNESCO का full form है United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ये एक specialized agency है United Nations की. It is a specialized agency जो बनी थी 1945 में. Okay, this was the establishment year. अगर हम देखते हैं it was also a successor to the League of Nations. We know League of Nations जो World War I के बाद आया था ताकि कोई दूसरा वॉर ना बने. So League of Nations का एक बॉडी था which is called as the International Committee on Intellectual Cooperation. So जो काम अभी यूनेस्को करता था that was one of the major tasks of this body. Now ये नहीं है, we have the UNESCO that is now the more functional body. अगर हम इसका एम देखें it is to ensure peace and security, collaborate with other international with countries and in the fields of what? In the field of education, science, culture, communication and information. Something that you must have heard when you are reading the newspaper is about the World Heritage Sites. UNESCO का World Heritage Sites ये कई बार हमने डिस्कस भी किया है. So this is again given by the UNESCO. Why is it that they are giving this? Because हम क्या कर रहे हैं? We are conserving, we are preserving sites that have some cultural importance, है ना? तो इंडिया में कितने sites है ऐसे? We have about 42 sites and अगर recent अगर हम additions की बात करें, that is Shanti Niketan in West Bengal and we have the Hoysala Temple, right? Karnataka में Hoysala Temple Complex. So this is what are the recent additions of the UNESCO World Heritage Sites. Now if you talk about what was the first UNESCO World Heritage Site, ये आप मुझे बताएंगे in the comment section, which is India's first UNESCO World Heritage Site. ठीक है. Now we also will understand about the headquarters of UNESCO जो है पेरिस फ्रांस में एंड ये रिपोर्ट्स भी देता है अलग अलग जो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट. ये रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है? यूनेस्को रिलीज करता है. यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? पेरिस में है एंड वी सी के कितने मेंबर कंट्रीज है? 194 मेंबर कंट्रीज है. इंडिया भी इसका पार्ट है, इंडिया भी इसका पार्ट है, लेकिन रिमेंबर देयर आर एक्सेप्शंस टू द मेंबर्स who are not members to this. Israel and we have Liechtenstein. They are not members of the UNESCO. So incomprehensively we have discussed about the UNESCO and India भी अभी पार्टी है of the World Heritage Committee, ठीक है, which came across by the World Heritage Convention 1972 का convention से we have this particular committee. Let's understand about the World Heritage Convention of the 1972. तो ये बना था in 1972. The convention का पूरा नाम है Convention of Protection of वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. तो ये पूरा नाम है 1972 में बना था. सो दिस इज मेनली हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ योर कल्चरल प्रॉपर्टीज. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिजर्विंग द बैलेंस बिटवीन द टू. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द नेचर एंड द कल्चर. इन दोनों का प्रेजर्वेंस, इन दोनों का यू कैन से प्रिजर्वेशन एंड बैलेंस इज टू बी मेंटेन्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात देखें, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर कंट्री कंजर्व करेगा. जैसे हमारे पास 42 साइट्स है, वी विल इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर देयर ऑन आवर टेरिटरी, बट ऑल्सो
टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल हेरिटेज। तो हम टेंटेटिव साइट्स देते, वी नो दैट रिसेंटली इवन वी हैव सीन टेंटेटिव लिस्ट, हमने मध्य प्रदेश के कुछ 6 साइट्स दिए थे। सो रिमेंबर दैट वी आर ऑल्सो nominating these sites, and finally you have the UNESCO deciding कौन सा site should be in the UNESCO World Heritage Site। ठीक है, so we have understood about the UNESCO and India's news with regard to being the 46th, the host of the 46th UNESCO panel। Let's understand the next news of the day, जो है स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। सो स्मार्ट सिटीज मिशन जो लॉन्च हुआ था 2015 में, अभी इसको एक्सटेंड किया जा रहा है 2025। इनफैक्ट इसको 2 बार एक्सटेंड किया है, अभी तक हमने डेडलाइन 2 बार चेंज किया है। सो नाउ अगेन वी सी दैट 2025 मार्च 31 2025 तक इसका डेडलाइन है। तो पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द स्मार्ट सिटीज मिशन। ओके, सो स्मार्ट सिटीज मिशन व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इन 2015, और इसका जो एम है, इट इज टू प्रमोट द सिटीज दैट ऑफर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि वी आर क्रिएटिंग सिटीज दैट ऑफ कोर्स स्मार्ट। इन व्हाट वे स्मार्ट? इनफैक्ट कि अगर हम आईसीटी की बात करें, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, फॉर बेटर मेंटेनेंस और यू कैन से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बेटर वाटर मैनेजमेंट, बेटर सीवेज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर अगर अच्छे से निकल जाए, ये सब एनर्जी प्रिजर्वेशन, ये सब हम मेंटेन करेंगे ऐसे सिटीज में। तो ऐसे कितने सारे सिटीज हम बनाएंगे? ऐसे हम बनाएंगे 100 सिटीज। और ये 100 सिटीज को कैसे सिलेक्ट किया गया था कि इस 100 सिटीज में इनको स्मार्ट सिटी बनाना है? दिस वाज मेनली चोजन थ्रू कंपटीशन के थ्रू ये सिलेक्ट किया गया था। सो देयर आर अबाउट 100 सिटीज दैट आर टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया है स्मार्ट सिटी का। यहाँ पे स्मार्ट सिटी इज दैट सिटी दैट हैज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड ये स्मार्ट सोल्यूशन यानी कि टेक्नोलॉजी का काम या टेक्नोलॉजी यूज करता है ज्यादातर से। इट विल हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बेटर, इट विल हैव देम बेटर, एंड यहाँ पे पूरा एरिया का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो दो सिटीज दैट हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट हैव गुड कम्युनिकेशंस, ऑल ऑफ दिस आर टर्म्ड एज स्मार्ट सिटीज, लाइक एडवांस सिटीज। सो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों फंड करते हैं इसको, ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सेंटर का, एंड वी हैव द स्टेट्स आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इट। हम देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के नोडल मिनिस्ट्री है। इसका मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये इस मिशन? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो अगर हम अभी का देखें कि हाउ वेल इट हैज डन, 2015 में लॉन्च हुआ था, देयर हैज बीन अबाउट 7188 प्रोजेक्ट, 7188 प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं। दैट मीन्स 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, लेकिन हमारा जो टारगेट है it is about 8,000 से ज्यादा। So therefore we have extended now so that we complete the rest of the project. So this is with regard to the smart cities mission. जो हमारा next article है that is with regard to the National Research Foundation. So let's understand about this body, but context क्या है इस article का? National Research Foundation से related है ये article. This talks about कि कोई भी Indian industry का stakeholder नहीं है इस body में, कोई भी Indian industry का presence नहीं है इस board में। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका एम क्या है? इसका एम है टू सपोर्ट एंड फंड जो प्रोजेक्ट्स, जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, इसको ये फंड करता है, इसको ये सपोर्ट करता है। क्या इसके पहले वी डिडंट हैव एनी बॉडी लाइक दिस? We of course had a body, and in fact अगर हम हिस्ट्री की बात करें, it goes back in 2005। 2005 में जो हमारा साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी है, इन्होंने एडवाइस किया था प्राइम मिनिस्टर को कि वी शुड हैव द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो ये बॉडी का उन्होंने रेकमेंड किया। व्हाट इज द फुल फॉर्म? नेशनल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फाउंडेशन। 2008 में इसको बनाया भी था,
लेकिन नाम अलग किया. सो वी हैड द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह दैट टाइम एंड ही क्रिएटेड द बॉडी not N but SERB. Okay, so 1 minute. It was SERB. Okay, SERB का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. तो ये कब बना था? 2008 में बना था. सो दिस ऑल्सो द मेजर फंक्शन ऑफ दिस वॉज टू सपोर्ट द रिसर्च, सपोर्ट इनोवेशन इन द कंट्री, इंजीनियरिंग एंड साइंस रिसर्च इन द कंट्री. लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं, वी हैव एन ओवरहॉल. व्हाई आर वी हैविंग दिस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? व्हाई डिड वी रिपील दिस वन? व्हाई डिड वी डिसॉल्व द सर्ब एंड द एक्ट? Because now we are going to do this on the recommendation of the National Education Policy, जो 2020 की recommendation के through हम ये body बना चुके हैं. Okay, on whose recommendation this was? The overhaul was on the basis of the National Education Policy 2020 की, ताकि we have the National Research Foundation and इनका जो period है, okay, so they will have a cost of 50,000 करोड़. कि कितना होगा? 50,000 करोड़ रुपीज इनका इतना फंडिंग होगा इनके पास, एंड इट विल बी स्पेंडिंग दिस इन द टाइम पीरियड ऑफ 2023 से लेके 2028. ओके, तो ये 5 साल में ये काफी कुछ प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे. सो वी हैव सीन अबाउट द अनुसंधान नेशनल रिसर्च. ये कौन से एक्ट से बना है? द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट. यू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज अ रीसेंट डेवलपमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारे इंडिया में, वो ये रेगुलेट करेगा. और ये पिछला जो एक्ट है इसको उन्होंने रद्द कर दिया है, दैट इज साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट ऑफ 2008. इट हैज डिसॉल्व्ड द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. सो नाउ वी जस्ट हैव द NRF. ठीक है, नाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल थिंग ऑफ द आर्टिकल अबाउट द ANRF, ये कहता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट बॉडी है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगा टू द रिसर्च, बट द मेजर प्रॉब्लम इट डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्री. तो कौन कौन है इसके मेंबर्स, ये सब बताए गए हैं इस आर्टिकल में. इट ऑल्सो अपॉइंट्स हु इज मेंशन्ड. ओके, सो इट इज विद रिगार्ड टू एक इंडस्ट्रियलिस्ट मेंशन किया गया है फ्रॉम, ही इज एन अमेरिकन बिलियनर ऑफ द इंडियन ओरिजिन. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पर्सन्स यहाँ पे मेंशन किए हैं. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द एग्जाम, बट दिस बॉडी इज इंपॉर्टेंट with regard to its recent development. अगर हम देखते हैं कौन सा बॉडी इसकी नोडल एजेंसी NRF की है, DST, that means Department of Science and Technology is the nodal agency or the administrative functions जो देखता है, it is the Department of Science and Technology. So we have completed about this article and we've understood the basics of this body NRF, that is to promote basic research in science and engineering. जो next article है, this is very interesting. Okay, some interesting fact that we are understanding according to a study, कि अगर किसी region या किसी city का air वैसे clean है, but suddenly अगर वहां पे एयर पोल्यूशन स्पाइक होता है या इंक्रीज होता है, वहां पे डेथ रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सिटीज दैट ऑलरेडी हैव हाई पोल्यूशन. ओके, सो यू अंडरस्टूड व्हाट द आर्टिकल सेज. द आर्टिकल सेज कि एयर पोल्यूशन अगर स्पाइक होता है उन सिटीज में जहां पे नेचुरली अगर हम देखते हैं क्लीन एयर है, वहां पे ज्यादा डेथ रेट्स होंगे. सो यू कैन रीड दिस मेजर थिंग अदर देन सिटीज दैट हैव हाई पोल्यूशन. एग्जांपल दिया है बैंगलोर का. बैंगलोर वी हैव रीजंस ऑफ हाई डेथ रेट as compared to Delhi. Delhi में we know that the region has one of the, it's considered as the world's most polluted capital, है ना. तो यहाँ पे अगर और बैंगलोर में अगर हम रिलेट कर सकते हैं, we find when we compare, Bangalore will have higher death rate as compared to Delhi. ठीक है, so this is mainly the study बताता है. Now let's understand everything with regard to the important aspects with pollution with respect to air quality index, because यहाँ पे we can expect these questions अगर ऐसा कुछ passage आता है. So let's understand with air quality index. और अगर हम world air quality report की बात करें, right, world air quality report of 2023, which is the most polluted country of the world, it is Bangladesh.
ठीक है, बांग्लादेश पहला कंट्री है, द फर्स्ट कंट्री विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड। इसके बाद है पाकिस्तान, तो हमारे नेबर्स ही है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया है थर्ड इन द रैंकिंग। ओके, इंडिया इज थर्ड इन द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। कैपिटल की बात करें, द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इज आवर ओन कैपिटल, दैट इज दिल्ली। If you're talking about the most polluted metropolitan area, the city, अगर most polluted city की बात करें तो यह हमारा खुद का सिटी है, that is बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय कहां पे है? बेगूसराय है बिहार में। So these are some important facts with regard to the world's most polluted country, world's most polluted capital, and world's most polluted city. In fact, it is said that 10 out of 11 cities are in India. ठीक है, 10 out of 11, and the 11th one, and the one of them, लाहौर जो है, ये पाकिस्तान में। So you can see that इस region is contributing to a lot of pollution. अगर हम देखते हैं कि what has India done with regard to controlling the air pollution, तो हम देखते हैं it started in 2014। ठीक है, 2014 में अगर हम देखते हैं we have given out the air quality index। ओके, इसमें 8 इंडिकेटर्स होते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 इंडिकेटर्स होते हैं। ये 2014 में आता है। इट वाज रिलीज बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये रिलीज करता है। कौन से ऐसे 8 इंडिकेटर्स हैं? लाइक वी हैव द PM 2.5, PM 10, ओके, वी हैव द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो फाइंड लेड। ठीक है, PB यानी लेड। वी ऑल्सो फाइंड अमोनिया NH3। ठीक है, NH3। सो दीज आर एंड ऑफ कोर्स वी कैन ऑल्सो ऐड ओजोन। तो ये है हमारे 8 इंडिकेटर्स। Okay, so there are 8 indicators that we see. These are given in the AQI. So you need to remember which are the 8 indicators that are given by the Air Quality Index released by the Central Pollution Control Board. We also have the National Clean Air Program, NCAPB. हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2019 में। This was by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, NCAP, दैट इज टू कंट्रोल द एयर क्वालिटी, मतलब एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए वी नीड टू ब्रिंग डाउन द पोल्यूशन लेवल्स। जो ये 2.5 और 10 ये क्या है? दीज आर द पार्टिकुलेट मैटर्स जो प्रेजेंट है, इसको कर्टेल करने के लिए ये सब हम प्रोग्राम्स लेके आए हैं। इनफैक्ट WHO कहता है दैट जो परमिसिबल लिमिट है ना फॉर PM 2.5 वो होना चाहिए 5, ओके, 5 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, ये होना चाहिए लिमिट। और दिल्ली में कितना है? दिल्ली में है 102। सो यू सी द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट वी हैव इन आवर सिटीज, एंड व्हेन वी गेट सच डेटा दिस इज अगेन स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द सेम। ठीक है, तो ये हमने पूरा आर्टिकल के साथ हमने कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन की जानकारी भी ली। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड दिस इज विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल अफेयर्स। तो हम देख रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द कैबिनेट कमिटीज। Okay, now what do you mean by cabinet committees? Cabinet committees are created या constituted ताकि जो कैबिनेट है ना उनका काम, उनका वर्कलोड को उनको हेल्प कर सके, उनका जो टाइम है बचा सके। तो इसीलिए हम अलग अलग कमिटीज बनाते हैं, एंड दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। दीज आर टर्म्ड एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दे आर नॉट गिवन इन द, they are not mentioned in the constitution, they are extra constitution, but they are created because they really help in the decision making, they help to recommend, advise the cabinet। तो final जो answer है या final जो decision है वो हमारा cabinet का ही होता है, but ये body help करती है to get or to fast track certain things or to help in decision making for the cabinet।
तो यहाँ पे कौन इनफैक्ट कौन होते हैं इन कैबिनेट कमिटीज में और कितने कैबिनेट कमिटीज हैं? वी सी अर्लियर में ये जो नंबर है इट स्टार्टेड विद 2, देन रिसेंटली 2019 में 2 और कैबिनेट कमिटीज ऐड की थी। अभी में अगर हम बात करें देयर आर अ टोटल ऑफ 8 कमिटीज। हाउ मेनी कमिटीज? A total of 8 committees. What are these cabinet committees? Let us quickly see. The first one, Cabinet Committee on Appointments, Cabinet Committee on Accommodation, Cabinet Committee on Economic Affairs, Cabinet Committee on Parliamentary Affairs, Cabinet Committee on Political Affairs, Cabinet Committee on Security, Investment and Employment and Skill Development. So total 8 committees है. Now remember, whenever Prime Minister is a member of any of the committees, he automatically becomes the head, he becomes the chairman of the committee. तो कभी भी Prime Minister किसी committee का member बनता है, he will become the head of it. And remember, इन में 6 of them, okay, 6 of them में प्राइम मिनिस्टर इनके पार्ट है, यानी प्राइम मिनिस्टर इनको हेड करते हैं, सिवाय 2 के। कौन ऐसे 2 है जहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होता? इट इज इन द प्राइम मिनिस्टर, इन द कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये 2 कमिटी में वी डोंट हैव द प्राइम मिनिस्टर इन दीज 2 कमिटीज। ठीक है, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। Now they have given about constitute हुआ है, तो कौन कौन है मेंबर? जैसे अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें, दिस इज अगेन फॉर वेरियस हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स के लिए वी हैव दिस कैबिनेट कमिटी। वी हैव प्राइम मिनिस्टर एंड द अमित शाह, दैट इज होम मिनिस्टर, दे आर द हाई लेवल पीपल, 2 members that are there. Apart from that, accommodation के लिए we have again Amit Shah. We don't have the prime minister in this, so the other members are also mentioned in this particular aspect. After that, we also see security. Security maybe prime minister is the head because prime minister is a part of him. राइट, एंड देन कौन दूसरे मेंबर्स हैं ये भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे आपको याद रखना है कि देयर आर आल्सो कैबिनेट कमिटीज में कैबिनेट मेंबर्स हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, जो दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये भी हो सकते हैं इन कैबिनेट कमिटीज में। तो यही कहा गया है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद द कैबिनेट कमिटीज। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल जो है मणिपुर से रिलेटेड। नाउ मणिपुर जो है इट इज सीकिंग 5,000 PMAY units. Now what is PMAY? Why? It is प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो ये 5,000 यूनिट यानी घर और सीक करता है इन द बजट एलोकेशन फॉर सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर। सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड ये आर्टिकल क्या बताता है ना। मणिपुर जो है, मणिपुर की गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है सेंटर को कह के कि हमको 10% से ज्यादा, 10% तो नॉर्थ ईस्ट को स्टेट्स को मिलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन 10% से ओवर हमको और भी चाहिए ताकि हम फाइनेंशियल सपोर्ट हमको मिल सके फॉर क्रिएशन ऑफ 5,000 मोर हाउसेस। ठीक है, बिकॉज वी नो द रिसेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था मेतीज और कुकीज के बीच में इन द मणिपुर स्टेट, तो यहाँ पे क्रिएशन करने के लिए हमको और कुछ फंड्स की आवश्यकता है, इज व्हाट द मणिपुर गवर्नमेंट इज सेइंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इनके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, सो दीज आर द 2 components. This is mainly providing affordable housing. This is mainly talking about affordable housing. ये एक credit linked subsidy है। Okay, you get some जो interest rates है उसको subsidies मिलती हैं अगर आपको घर चाहिए। So this is also helping with regard to slum development. It talks about increasing the public-private partnership ताकि we have the private stakeholders also coming in for the creation of houses. यहाँ पे अगर आपको loans चाहिए, loans में जो interest है उसमें subsidy मिलती है ताकि जो low income households हैं, जो middle income households हैं, जो economically weaker sections हैं, they are able to build houses, they are able to get proper housing. ठीक है, तो ये हमने देखा है। This is U stands for urban
एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रामीण, यानी कि दिस इज फॉर द रूरल हाउस होल्ड्स, ठीक है। सो यहां पे दे सिलेक्ट द हाउसेज बेस्ड ऑन द सिलेक्ट द स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन द SECC, सोशली इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011 के। सो इस बेसिस पे वो सिलेक्ट भी करते हैं मेनली द वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज दैट आर लो इनकम कम्युनिटीज बेसिकली। तो यहाँ पे हमने देखा है विद रिगार्ड टू प्रधानमंत्री अर्बन एंड ग्रामीण, और कौन है इनके नोडल मिनिस्ट्रीज। अर्बन का तो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड ग्रामीण का है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्रीज भी आपको याद रखनी है। So this is with regard to the important aspects with regard to PMAY. Let's proceed to an editorial given in the Indian Express. तो इंडियन एक्सप्रेस में कहा है कि कर्नाटका हैज रिसेंटली पास्ड और रिलीज्ड द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स 2004। ये एक बिल है। सो यहाँ पे अगर ये एक्ट बनता है, पब्लिक सजेशन के लिए रिलीज किया है, अगर ये एक्ट बनता है, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड स्टेट टू हैव एन एक्ट फॉर द गिग वर्कर्स, ठीक है, गिग वर्कर्स। तो कौन सा ऐसा पहला स्टेट है दैट हैज एन एक्ट बेस्ड ऑन गिग वर्कर्स? दैट इज राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू पास एन एक्ट फॉर द गिग वर्कर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गिग वर्कर्स? इसका मतलब क्या है? These are your contract workers. ये जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो ओला में काम करते हैं, जोमैटो, स्विगी, जो डिलीवरी करते हैं ना, उनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। Alright, now if you see the problem in this in India is, यहाँ पे इनका सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं करते। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ये कभी भी इनको निकाला जा सकता है। दे डोंट हैव सोशल प्रोटेक्शन एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद गिग वर्कर्स इन इंडिया, हम देखते हैं हमारा जो मेजर ऑफ द पॉपुलेशन है, दे आर इन द यू कैन से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, या ये गिग वर्कर्स है, मेजर पॉपुलेशन हमारे इसी सेक्टर में काम करता है। And you will find that people who are working in this sector, they are coming from vulnerable या marginalized communities. इनकी जो तनख्वाह होती है, it is merely about less than 18,000 a month. This is according to a recent study by the gig workers, for the gig workers. और हम देखते हैं they also work for long hours. You know, ये 12 से 14 घंटे काम करते हैं and they don't have any social protection. तो कभी भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट या ये उनको निकाल सकती है। So therefore we now see state governments are bringing about new laws, new acts to protect these gig workers. So यहाँ पे जो एक्ट है या यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये बताता है विद रिगार्ड टू वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, क्रिटिसाइज करता है कुछ एस्पेक्ट्स को। तो अभी थोड़ा कुछ देखते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान लॉ का क्रिटिसाइज किया है विद रिगार्ड टू द डेफिनेशन। ओके, नाउ वी सी दैट द गिग वर्कर्स विच इट डज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं करता है कि गिग वर्कर्स क्या है। On the other hand, Karnataka bill, they continue, they are talking about these platform जो इनको काम देते हैं, जो मैंने कहा जैसे ओला कंपनी है, जोमैटो कंपनी है, these are called as platform companies. Okay, तो it terms are these platform companies as intermediaries. Okay, ideally इन प्लेटफॉर्म कंपनीज को एम्प्लॉयर का दर्जा देना चाहिए एंड गिग वर्कर्स को एम्प्लॉइज। अभी दे आर जस्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, दे आर गिग वर्कर्स। सो देयरफॉर डिफाइनिंग कि कौन क्या है ये होना चाहिए इज व्हाट द राइटर्स से। On the other hand, we also see the Karnataka bill जो है it talks the positive that is there कि 14 दिन का नोटिस आपको देना होगा एडवांस में before terminating the contract worker. We know that जब भी लो आपको रेटिंग मिलता है, you know, when you give a low rating to your this your delivery person, he automatically reduces उनका सैलरी या उनके जो perks है, जो उनके इनकम है, उनको वो रिड्यूस करते हैं। So that is the problem. They consider customer king. These platform companies consider the customer as king. And हम जो भी उनको रेटिंग देते हैं,
that affects their income. So all of this is mainly seen as things that needs to be checked, and very well the article covers about the various aspects of the Rajasthan and the Karnataka legislature. However, the importance for your exam of course will not be much with regard to कि क्या है इनकी limitations. ये बस समझने के लिए we understand about this article. However, important for you is which states have brought about legislation with regard to gig workers. तो यहाँ पे आपको questions directly आ सकते हैं, राजस्थान being the first one, and we are yet to see कि अगर कर्नाटका passes this particular bill on gig workers. So let's proceed to the next article. And जो next article है, in fact the last article of the day, this is with regard to GPAI. ठीक है, GPAI is Global Partnership on Artificial Intelligence. तो ये अगर हम बात करें, दिस इज मेनली फॉर द बेटर डेवलपमेंट, फॉर द बेटर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट इट डज नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स, इट इज मोर इंक्लूसिव, इट इज मोर सस्टेनेबल, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सब हमको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. What do you mean by artificial intelligence? This is mainly the action of machines. Machines का इस्तेमाल होता है to perform task, ताकि task को accomplish कर सके जो पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस से बनता था. इट वॉज अर्लियर यू टेकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, अभी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट करता है कि कौन यू मे नो दीज पीपल, है ना. सो दिस इज मेनली अंडरस्टैंडिंग डेटा अंडरस्टैंड करके वो आपको सजेशंस देता है. या अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल्स की बात करें, वी ऑल्सो हैव सेल्फ ड्राइविंग कार्स. तो ये भी इसी टेक्नोलॉजी से हमको पता है दैट वी हैव द बेनिफिट्स ऑफ द एआई. अगर हम बात करें व्हाट इज दिस ग्लोबल पार्टनरशिप एआई, यानी इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में, रिमेंबर दैट इट वाज लॉन्च्ड इन 2020. ये कब लॉन्च हुआ था? 2020. 15 मेंबर्स हैं इसमें, 15 मेंबर्स हैं. क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है. ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे 29 मेंबर्स, अभी तक 29, पहले 15 मेंबर्स थे और अभी 29 मेंबर्स आ चुके हैं. तो कौन से ऐसे मेंबर्स हैं ये यहाँ पे मेंशन किया है. सो वी अंडरस्टैंड मोर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इनके मेंबर्स हैं. किसने फॉर्म किया था? इनफैक्ट दिस वाज एन आइडिया दैट वाज गिवन बाय द G7 जो हमारे डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज है ना, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली. ठीक है, ये जो यूएस, यूके, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडिया नहीं है इसका पार्ट बिकॉज दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज. तो G7 ने ये आइडिया दिया था 2019 में. ठीक है, इट फॉर्मली गॉट दिस आइडिया दैट वी शुड हैव, एंड 2020 में ये लॉन्च हो गया. एंड इसका जो होस्ट कंट्री है, ये कौन होस्ट करता है? दिस इज मेनली बाय द OECD. ठीक है, व्हाट इज द OECD? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, सो वी हैव द OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो ये होस्ट करता है एवरी. सो यहाँ पे अभी 6th हुआ है, 6th मीटिंग है. And the context of this article is that we are going to have integrated partnership of the AI with OECD. तो यही है मेजर. बट रिमेंबर OECD के बारे में, some facts about OECD because this is an international organization. Remember that this body was formed in 1961. ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर्स है हमारे पेरिस, फ्रांस में. ठीक है, एंड ये बना था ऑफ कोर्स टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अमंग दीज नेशंस. There are about 37 countries, 37 odd countries in this. India is not a part of it. ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है. बट इंडिया इज ऑल्सो, इट्स नॉट अ मेंबर बट इट इज अ पार्टनर टू इट. तो ये ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स में एक बार पार्ट भी लेता है. इट इज अ पार्टनर टू इट बट नॉट अ फुल फ्लेज्ड मेंबर. ठीक है, सो OECD इज द वन दैट इज होस्टिंग दिस पर्टिकुलर GPAI. इनका जो सेक्रेटेरिएट है अभी OECD के हेडक्वार्टर्स में ही है, यानी कि पेरिस में है. इसके अलावा 2 और सेंटर्स हैं मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में, एंड इट हैज इन पेरिस.
ओके, सो नाउ देयर वाज आल्सो अ डिस्कशन कि क्या उसका सेक्रेटेरिएट, जैसे इंडिया कहती है कि इसका जो GPAI का सेक्रेटेरिएट इसको रिवॉल्विंग होना चाहिए, यानी सब कंट्रीज को एक एक बार एक मौका देना चाहिए टू मेनली host it, right, to mainly have this. But OECD members को ये मंजूर नहीं है. OECD wants its own secretariat, यानी कि पेरिस को ही उनको ये काउंसिल में बनना है. That is what it remains. So this is yet to see with regard to what is going to be the future development. But we understand that now we want to have an integrated partnership with OECD, and this is going to, of course, help India and other countries in the world to ensure that the artificial intelligence का development happens for the good. So that's all with regard to today's news analysis. बहुत सारे interesting articles हमने discuss किए हैं. Thank you so much for watching.